All right. Very good evening to one and all present for today and tomorrow's workshop on SLR and bibliometric analysis. It's a great pleasure to represent MTC Global for this today's workshop and welcome all of you on board. And we are highly thankful for Dr. Salini ma'am to be the resource person for today and tomorrow. And I'll just take few minutes to now introduce ma'am so that all the participants know about her work and areas of interest. Thank you so much. Dr. Salini Agarwal is an alumnus of the Indian Institute of Management, Ahmedabad, is a professor of finance at Chandigarh University, Mohali. She has a total work experience of 18 years in industry and teaching. She is an MBA with specialization in finance and PhD in the area of risk management practices in banking sector of India. She has more than 40 research papers published in SCI, Q1, Q2, Scopus, and ABDC, A, B, and C listed journal. Her case studies are published in IIM Ahmedabad Case Center. She has also authored two edited books published by Taylor and Francis. She has completed three funded research projects, two with IIM Ahmedabad and one by IMS Ghaziabad. She has conducted more than 100 workshops on data analysis using time series data in SPSS, eViews, and Art Studio, and has delivered guest lectures at national and international level like South Africa, Bangladesh, Afghanistan, Thailand, Indonesia, and Brazil. She has delivered guest lectures at renowned institutes like NITTR, Chandigarh, NIFM, Faridabad, NTTR, Chandigarh, GLS School of Doctoral Research and Innovative, Gujarat, VIT Vellore. Further, she has chaired sessions at national and international conferences in the countries like Thailand, Indonesia, etc. She has 8 copyrights and 1 patent in her name, acts as reviewer for Emerald, InderScience, and Sage publication. 4 students have completed their PhD journey with her. She has floated one special issue with the Journal of Sustainable Finance and Investment of Taylor and Francis entitled International Finance and Sustainability. She is the associate editor of the Journal of Sustainable Finance and Investment, and Asia Pacific Financial Market. Thank you so much, ma'am, for sparing your time for today and tomorrow. And it's a great pleasure to have you on board. So I won't take much time. I hand over the session to Dr. Salini, ma'am. Ma'am, please kindly take over. Thank you. Thank you very much, sir. Can I show? Is it possible for me to share my screen now? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Okay. So, a very good evening to one and all present here. Am I audible properly? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So let me start with this. So today we will be talking about systematic literature review, right? Let me increase the font size. So, okay. So let me tell you one thing. What is what are the different stages or what are the different
things that we write into systematic literature review. When we do our systematic literature review, you know that it is different from writing a paper, right? You will agree with me. It is different from writing a paper, right? Systematic literature review, right? So what are the different stages that we have in systematic literature review? So let me cover that first. That is introduction. Second, we talked about research methodology here. Please understand that we do not do the review of literature here. So when we are writing a paper, we do write the review of literature. But in this, we do not write the review of literature. The second thing that comes into the picture is after the introduction is the research methodology. Third part comes the data analysis. This is the third part. Next comes the discussion. Then comes the implication of the study. And then comes the conclusion. And then the references. So this is the structure. This is the structure for writing the systematic literature review, right? So you can see what is the major difference between writing a paper and writing a SLR. So here we do not have the review of literature part here, right? So we straight away go to the research methodology, right? So systematic literature review. So let's start with the Scopus database. What we do is here, first thing is we define the objective, or we decide the topic on which we want to carry the SLR or the systematic literature review, right? So सबसे पहले you have to find out on which topic you want to carry out the SLR. So let's say you want to carry out this on sustainable finance, right? So you know what you have to do is you have to find out the keywords. Like this is the topic, right? So what you have seen is like nobody has written the paper with respect to the topic that is called as a sustainable finance. So what you have to do is you have to find out, you have to search the keywords for it. This is how we start with this. You have to search for the keywords, right? So keyword search. So sustainable finance में आपको keywords कौन से use? Are you okay with English and Hindi, or should I proceed only with English language? English and Hindi is okay? Both. A mixture of both, ma'am. Both, right. So, okay. So, वैसे let me tell you one thing. Systematic literature review में what exactly you do is previous papers written by authors, you are reviewing that. Previously papers written by authors, you are reviewing that, and you are writing it into the data analysis part. Purane papers. So let's move to the keyword search. This is the most important thing. Let me repeat this again. So we are talking about SLR, right, in today's workshop. So in this, सबसे पहले, if you are writing a SLR, so what is the first thing that you have to do? You have to define the objective, right? कि किस topic पे you want to do the SLR, right? This is the most important thing. So उसके लिए, let's say you want to go for sustainable finance. So this is the topic that you decided that you wanted to go for an SLR, right? तो इसके अंदर keyword search, तो सस्टेनेबल फाइनेंस आपका मेजर टॉपिक है. तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने डिसाइड किया है
कि आप इसके ऊपर SLR लिखोगे, तो आपको इसके बाद क्या करना है, कीवर्ड सर्च करने हैं, राइट। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करने हैं, जो कि आप स्कोपस के डेटाबेस पे करोगे या वेब ऑफ साइंस या गूगल स्कॉलर. I hope you understand what is a Scopus database, what is Web of Science. Do you people know? And what is Google Scholar? Do you people know these things? Raise your hands if you know this. Yes, ma'am. Should I tell you? No. I think everybody has raised their hands. You people know what exactly it means, right? So, No, ma'am, can you repeat those? Scopus yes. database and Web of Okay, Science. let me show you, in fact. So here, this is, I have typed here scopus.com. Right? So this is the page that comes, but this page will only come if you have personally subscribed to the Scopus database, or if your organization, like I'm in Chandigarh University right now, so my organization, it has subscribed this Scopus database. So यहाँ पर मुझे बहुत सारी options नजर आ रही हैं search के लिए, ठीक है. So let's say my topic is sustainable finance. मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ. Sustainable finance, right? Let me put only this keyword right now, but later on I'll put some other keywords as well. Let me tell you what exactly I'm trying to tell you. So just look at this. So what I have found in this database, let me increase the font size of this. Okay, so you can see if I have typed the word sustainable finance, right? So how many people have written the paper on this? 1089 documents found. It means what? It means previously this much of the people, they have conducted their search on this topic, and the topic is sustainable finance. Right? So this much of the people, they have conducted their research on the topic that is called as a sustainable finance. So, Scopus database or Web of Science, ये आपको ये देखो documents दिखा रहा है. ये, what is this? It is talking about the first article. This is written by these authors. This has been published into this journal in the year 2024. So if you want to see the abstract, यहाँ पर ना actually ये सारे जितने भी documents हैं, तो ये सारे documents हैं, इनकी आप abstract और important information को download कर सकते हो. मैं अभी आपको सिर्फ इसका करके दिखा रही हूँ, right? Later on we'll do it in a more elaborated manner. Just telling you what the Scopus database gets you to. मतलब आपके लिए Scopus database क्या आपको help करता है, right? तो जैसे 1089 documents find out हुए. Go to the export. Go to this option export. Go to the file type CSV. Click on to all these things, right? And export. There is a button called as export here. So you will see here exporting 1089 documents to CSV file. एक CSV file generate हो जाएगी आपके सामने अभी. I'll show it to you. Just opening up. There is another file as well. I can open this file in the meantime. Let me show you this file. So Scopus database आपको कैसे हेल्प करता है? Look at this. ये look at this. Let me increase the font size over here as well. Right? So you can see here, ये मेरी पुरानी फाइल है. This is my old file. So what I'm trying to tell you कि Scopus database से, right, आपको ये सारे पेपर्स की मेजर इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक बार में, जिस आपने यहाँ पर क्लिक किया और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई. ये अगर आप क्लिक करो यहाँ पर, अगर आप सेकेंड रो, फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइटल्स, सेकेंड रो
कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट वन पेपर। तो ये जो फर्स्ट मैंने इस पे सेकेंड रो पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट पेपर की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई, राइट। इसी तरह से थर्ड पेपर की, फोर्थ पेपर की, फिफ्थ पेपर की, राइट। तो अब आप इन पेपर्स के एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस पेपर। एब्स्ट्रैक्ट, तो आपको यहाँ पर हर पेपर का जितने भी पेपर्स आपने डाउनलोड किए उनके सबके एब्स्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। मैं इसको अगर यहाँ पर ले जाके यहाँ कॉपी कर दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है, तो आपके पास ये जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड किया है उन सबके आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक ही फाइल में जस्ट क्लिक से यहाँ पर कलेक्ट हो गई है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ये सबको समझ में आई ये चीज? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड। यस, yes, please ask. Okay, so anyways let me continue. तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि फर्स्ट पेपर क्या कह रहा है, सेकंड पेपर किसके बारे में बात कर रहा है, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर। सो ये आपके लिए बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाता है, राइट। तो जो SLR होता है, राइट, तो SLR में आप क्या करते हो बेसिकली? नाउ लेट मी टेल यू बिफोर प्रोसीडिंग हेड how SLR is different, right, from a normal paper. कैसे फर्क होता है? लेट मी शो यू दैट थिंग। एक मैं आपको एक मिनट दिखाती भी हूँ, लेट मी शो यू दैट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम इस स्कोपस की जगह पर वेब ऑफ साइंस या फिर गूगल स्कॉलर से सेम चीज कैसे होगी वो आप? गूगल स्कॉलर से देखो, वेब ऑफ साइंस से तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, यू जस्ट टाइप वेब ऑफ साइंस यहाँ पर और वेब ऑफ साइंस से निकल जाएगा, राइट। लेकिन गूगल स्कॉलर से यू टाइप हेयर एज गूगल स्कॉलर हेयर, वहां पर थोड़ा सा टफ होता है। यू क्लिक ऑन टू दिस गूगल स्कॉलर एंड जस्ट टाइपिंग दिस। यहाँ पे थोड़ा सा टफ होते हैं क्योंकि एक एक पेपर को आपको लेट मी राइट इट हियर एज सस्टेनेबल फाइनेंस, राइट। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक करा सस्टेनेबल फाइनेंस। सो यू विल सी द पेपर्स दे हैव कम आउट हियर। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, आपको हर पेपर पे इंडिविजुअल जाके उसको देखना पड़ता है, राइट। यहाँ पर दैट इज गूगल स्कॉलर में। बट स्कोपस में क्या होता है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर इमीडिएटली ये सारा का सारा आपका आ जाता है। वेब ऑफ साइंस अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, आई ऑलवेज प्रेफर वर्किंग ऑन स्कोपस डेटाबेस। सो मैं तो आपको सजेस्ट भी करूंगी कि दैट यू आल्सो वर्क ऑन टू द स्कोपस डेटाबेस, दैट इज द बेटर एंड दैट इज वेरी इजी टू यूज, राइट। तो हाँ, और गूगल स्कॉलर में अगर आपके पास लेट्स से स्कोपस नहीं है तो आप गूगल स्कॉलर में, ये फ्री डेटाबेस है, इसमें कर सकते हो, बट इसमें टाइम टेकिंग है और इसमें हर पेपर पे आपको जाके इसका यू नीड टू फाइंड आउट द एब्स्ट्रैक्ट फॉर दिस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द स्कोपस डेटाबेस, यहाँ पर आपको एक ही क्लिक में आपको एक्सेल फाइल, यू गेट द एक्सेल फाइल एंड यू गेट द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ईच पेपर। आई होप इट इज क्लियर। ओके मैम, थैंक यू। या Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, on the Scopus database, before downloading the CSV file, वहाँ पे जो लिमिट्स आते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड में रेस्ट्रिक्ट करने वो मैं को। अभी बताऊंगी बेटा, आई विल टेल यू, ओके आई विल बी टेलिंग यू, ओके मैं बताती हूँ अभी। ओके। मैं अभी आपको सिर्फ पहले ये बताना चाह रही हूँ कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द राइटिंग इन नॉर्मल पेपर, राइट। इफ यू आर राइटिंग इन SLR paper, so how it is different from a normal paper? So just look at this. What you have to do is, let's say this is, let me start with easy thing. Okay, year of publication. Okay, so what you have to do is you have to do the data analysis part mein, you know. Actually what I'm trying to tell you how SLR is different from the normal paper. So when we talk about the data analysis part, right, so data analysis part में normally we used some tools and techniques, like जैसे हम लगाते हैं MOS लगा देते हैं, right,
या स्मार्ट पीएलएस लगा देते हैं. स्मार्ट पीएलएस से वी डू द कैलकुलेशंस एंड डू राइट, अगर नॉर्मल पेपर अगर हम लिख रहे हैं. बट व्हाट वी डू इन डेटा एनालिसिस पार्ट, इफ वी आर राइटिंग अ पेपर ऑन अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, तो ये जो एसएलआर वाली फाइल, ये जो सीएसवी फाइल मेरे पास आई है, सो उसमें हमें क्या करना है, दिस इज वी हैव टू रिव्यू दीज पेपर्स. जितने भी पेपर्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो पेपर्स, उनको हमने रिव्यू करना है. तो हम लेट्स से एक रिव्यूइंग का पार्ट क्या हो सकता है, ईयर. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक पार्ट क्या हो सकता है इसमें, ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर ऑफ द प्रीवियस पेपर्स. ये सबको समझ में आ रही है चीजें? Are you able to understand? I'm just trying to tell Yes, you. ma'am. Okay, let me start once again. मैं एक बार दोबारा से start करती हूँ. Let's have a repetition of what we have done. Right. So today we are talking about systematic literature review. Now, a systematic literature review is different from writing a normal essay, a normal paper. So what are the different stages that you have to have in a SLR paper? Introduction, research methodology, data analysis, discussion, implication of studies, and conclusion and references. So this is what the different stages or the different parts of a SLR paper, right? So यहाँ पर how it is different from the normal paper. Normal paper में we do write the review of literature, but here we do not write the review of literature, right? So उसके लिए अगर हमें systematic literature review करना है, so we need the help of some database. This is the most important thing. We need the database. What is a database? It is a collection of papers. So मैंने आपको कौन कौन से databases बताए. एक तो Scopus I talked about, एक Web of Science बताया, एक Google Scholar बताया, right? So normally for the management people, so these are the three database, right, that is available to find out the previous paper. Right. So what is a database? Database is a collection of paper. It is a collection of previous papers. Right. And on the basis of these previous papers, we do the SLR. Right. And commonly used databases are Scopus, Web of Science, and Google Scholar. These two are the paid ones. They are, मतलब ये काफी paid होते हैं, काफी इनका फीस होती है इनकी. लेकिन गूगल स्कॉलर फ्री होता है, लेकिन गूगल स्कॉलर पे आपको 1 by 1 खुद से सर्च करना पड़ता है. स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही निकलता है. ये आपको अगर आपने इसको सब्सक्राइब कराया है, सो दिस इज द फ्रंट पेज. ये आपका मेन पेज होता है. दिस इज द मेन पेज, राइट? तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन होती है सर्च करने के लिए. आप आर्टिकल टाइटल, अब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड में सर्च कर सकते हो, ऑथर नेम से सर्च कर सकते हो, सोर्स टाइटल, आर्टिकल टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इन सारी चीजों से सर्च कर सकते हो. बट नॉर्मल जो हम सर्च करते हैं वो करते हैं आर्टिकल टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स. इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स का मतलब होता है कि हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं. हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल फाइनेंस, राइट? इसके अंदर ये सिंगल, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये सिंगल है. ये जैसे सस्टेनेबल फाइनेंस में और क्या भी आ सकता है. ग्रीन बॉन्ड्स कैन बी वन टॉपिक इनटू इट, सो यू राइट ग्रीन बॉन्ड्स हियर. और क्या टॉपिक हो सकता है? ब्लू बॉन्ड्स टॉपिक हो सकता है. और क्या हो सकता है? सोशल बॉन्ड्स. अगर आपने डिसाइड किया है कि आप सस्टेनेबल फाइनेंस पे काम करो, तो सस्टेनेबल फाइनेंस पे जब हम काम कर रहे हैं तो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, they are also there. You have to put these keywords as well so that you can get a good number of paper onto this topic, sustainable finance. Sustainable finance is a major topic. Under this comes the green bonds, blue bonds और the social bonds, right? और ये जो हमने keywords डाले हैं वो किस में सर्च करेगा? आर्टिकल के टाइटल में, एब्स्ट्रैक्ट में और कीवर्ड्स में. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ये जो हमने कीवर्ड्स डाले हैं, these keywords that we have put here to search,
तो ये कहाँ सर्च करेगा? आर्टिकल के एक तो टाइटल में, दिस इज द टाइटल ऑफ द आर्टिकल। फर्स्ट क्या बोल रहा है? आर्टिकल टाइटल। तो आर्टिकल का टाइटल क्या है? ये। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट। तो और किस में करेगा? कीवर्ड्स, हर पेपर के, हर पेपर के। जस्ट लुक एट दिस, लेट मी डिक्रीज द फॉन्ट साइज। ये देखिए, तो ये जैसे एक फर्स्ट पेपर है, तो उसके फर्स्ट पेपर, हर पेपर के जितने भी पेपर्स हैं, जिन लोगों ने सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स और सोशल बॉन्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है, उनके वो कहाँ पे जाके चेक करेगा? आर्टिकल के टाइटल में। लाइक दिस इज द आर्टिकल टाइटल, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट एंड द कीवर्ड्स में जाके वो सर्च करेगा और फिर उसके बाद आपको एक रिजल्ट देगा। वो पेपर्स आपके यहाँ से अगर आप सर्च करते हो तो लेट्स सी, अब मैं इसको पूरा प्रॉपर ही बता रही हूँ। तो इसमें आ गया आपके पास 6170 डॉक्यूमेंट्स फाउंड। ये बहुत ज्यादा हो गए, है ना? तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू नैरो डाउन आवर रिसर्च नाउ, राइट? जब आप स्कोपस डेटाबेस से या कोई भी डेटाबेस से अपना डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी कीवर्ड. You have to find out the keywords. So these are the keywords that I have put, right? So I have got 6170 documents. So please, when you are when you're extracting the file from the Scopus database, just write down the numbers, this numbers. कि initial जब आपने search किया, तो आपके पास कितने documents आए? हमने किसमें से किया? Scopus database, right? और कितने डॉक्यूमेंट्स आए हमारे पास इनिशियली? दैट कम्स आउट टू बी 6170. टू राइट दिस नंबर, ये जो आप स्कोपस डेटाबेस के ऊपर कर रही हैं, यू जस्ट राइट इट डाउन हियर, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई हैव रिटन, 6170. सो लेट्स नैरो डाउन. अब आप इसमें पढ़ सकते हो कि कुछ ऐसे पेपर्स भी होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, राइट? तो लेट्स सी यहाँ पर ये कितने इयर्स से शो कर रहा है. दिस इज वन वे वी कैन नैरो डाउन. 1951 से दिखा रहा है, 1960. इतना तो हमें लेना भी नहीं है ना? सो लेट्स नैरो डाउन दिस. हम इसको 2006 भी, ये टाइम पीरियड, आप टाइम पीरियड को भी सेट कर सकते हो. ये समझ में आ रही है चीज? व्हाट आई हैव डन इज, मैंने क्या किया, यहाँ पे 1950 से दिखा रहा था. ये जो पेपर्स इन्होंने लिए हैं वो 1950 से कितने पेपर आ रहे थे? 6000 अराउंड. तो मैंने इसका टाइम पीरियड को कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिया. तो अब टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 2011 टू 2024. आर यू एबल टू सी दिस? सबको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली? प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, राइट. तो हमने, अब आप ये देखिए, आपको ये जो अपनी रिसर्च है नैरो डाउन करनी, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स में आप रिसर्च नहीं कर सकते, राइट? बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है. तो आपको क्या करना होता है? इसको नैरो डाउन करना होता है. तो नैरो डाउन कैसे करते हो? तो फोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, आपने टाइम फ्रेम को कम कर दिया. तो मैंने टाइम फ्रेम को कितना किया? 2011. इसको भी कम कर सकते हैं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इतना इंपॉर्टेंट. 2013, राइट? उसके बाद आप अपना बिजनेस मैनेजमेंट में ले लेते हैं. यू कैन सी दिस इज 937 डॉक्यूमेंट्स. यहाँ देख पा रहे हैं सभी? 937 डॉक्यूमेंट्स. अगर हम इस पे सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग को करते तो 937 डॉक्यूमेंट्स. सो दिस इज गुड इनफ. लेट्स गो अगेन. So I wanted only articles. I do not want the book chapters, review paper, conference paper, and book. So always try document type it is asking. So always go for articles, right? What we are trying to do, we are narrowing down. Let me repeat this again. What I'm trying to do is, मैंने क्या किया है Scopus database पे? मैंने सबसे पहले कीवर्ड डाले. I have put my keywords out here. ठीक है? जो कीवर्ड सर्च करता है वो कहाँ करता है? किसी भी पेपर के आर्टिकल के टाइटल में, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स. ठीक है? तो मेरे पास कितने आ गए थे? 6000 अराउंड. सो मेरे को इतने पेपर्स पे तो करना नहीं है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल नैरो डाउन माय सर्च. नैरो डाउन कैसे करते हैं? सबसे पहले टाइम फ्रेम. सो यहाँ से मैंने कितना कम कर दिया? 2013, राइट? उसके बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पे 937 डॉक्यूमेंट्स रह जाएंगे अगर मैं इसको बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग में करती हूँ. नेक्स्ट, अब यहाँ दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट टाइप.
आप क्या चाहते हो कि आपकी जो रिसर्च है वो आर्टिकल्स, बुक चैप्टर्स, रिव्यू? नो, वो ओनली फॉर द आर्टिकल्स. दैट इज द बेटर वे, राइट? आई वांट ओनली द इंग्लिश लैंग्वेज. एनीथिंग एल्स? नो 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 नो, दैट्स इट. तो मैंने लिमिट टू अपना ये यहाँ पे लगा दिया, लिमिट टू. ठीक है, तो अब कितने आर्टिकल्स आ गए मेरे? लेट मी चेक. 559 डॉक्यूमेंट्स, राइट? तो कितने आर्टिकल्स? जस्ट नोटेड डाउन समवेयर जहां पे मैंने लिखा था. इनिशियल, आपके इनिशियल कितने आए थे? आपके इनिशियल कितने आए थे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स? ये वाले, ठीक है, ये इनिशियल थे. फिर आपने यहाँ पे कुछ बाउंडेशंस लगाई, लिमिट किया उसको. तो लिमिट के बाद कितने आए? 559. ठीक है, अभी भी प्लीज अंडरस्टैंड, this is not the actual papers that you will do the SLR with. हम SLR इतने पेपर्स से नहीं करेंगे अभी भी हम इसको स्क्रीन करेंगे. स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इनको, अभी हमारे पास इधर ऑप्शन नहीं है इसमें स्क्रीनिंग करने के लिए. So what we will do is we'll download this into a CSV file. So I click onto this, the whole things, and I exported it. अब एक फाइल डाउनलोड हो रही है, उसी को हम फाइनल मानेंगे. जस्ट गिव मी अ मिनट. डाउनलोड्स, ओके, अभी हो रही है वो डाउनलोड. ठीक है, कोई बात नहीं, विल सी टू इट. तो इन द मीन टाइम ये हो गई है. ठीक है, लेट मी ओपन दिस वन. तो अब आप देखोगे इसमें, अब आप देखोगे ये फाइल आ गई है. अब लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन यू आर डूइंग अ SLR, सो दिस इज योर मास्टर फाइल. ये पूरी फाइल की मदद से आप अपना पूरा SLR लिखोगे. Are you able to understand, all of you? Please raise your hands if you are able to understand. ये सबको समझ में आ रहा है? मैडम समझ में आ रहा है, मतलब there's little confusion. Just can you give it just क्या again? कंफ्यूजन बताइए. मतलब अब we are cutting down the research papers, like there are 6,000 research papers to like बहुत कम, like what we need exactly. तो 300 we के are, करो ना. आप इतने ज्यादा हाँ जी. पेपर्स तो कर सकते हो. आप एक एक पेपर, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू रीड ऑल द पेपर्स? No, 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 it is not. हाँ, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रीड द एब्स्ट्रैक्ट, यू नो. अभी भी मतलब अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ ही है ना, तो हाँ आपको हाँ ये सारे पेपर्स को रीड करना भी, मतलब जी. रीड करना मतलब यू हैव टू रीड द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पेपर्स. ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है. तो मतलब उतने सारे पढ़ना पड़ेगा. हाँ, दिस इज व्हाट द थिंग्स इज. मैं एक Okay. चीज बताती हूँ, जब हम SLR करते हैं ना, तो यू डू इट इन अ ग्रुप, डू नॉट ट्राई टू डू इट इंडिविजुअल. मतलब कोशिश Okay. करो कि आप 3 से 4 लोग इस पेपर को लिख रहे हो. लेट मी गिव एन एग्जांपल. जैसे व्हेन आई स्टार्टेड विद वन ऑफ माय SLR पेपर, सो वी वर 3 फ्रेंड्स, ऑल वर Okay. फीमेल्स, एंड वी वर, यू नो, मतलब हमने बहुत मेहनत करी इस पे, और सारा दिन लाइक, और गूगल की यहाँ पर शीट बना ली थी, एक्सेल की शीट बना ली थी यहाँ पर, एंड यू नो, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑल टुगेदर. तो हम तीनों ने बहुत काम किया उसके ऊपर. तो यू नो, और क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है बेसिकली कि नंबर ऑफ पेपर्स इज टू हाई. अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं ना. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप खुद इसको इंडिविजुअल बेसिस पे करो. सो इट डू इट इन अ ग्रुप, सो दैट इज बेटर. Okay. क्योंकि अभी आप इस पेपर्स को पढ़ोगे सबको, ठीक है. तो अभी तो हमने क्या किया है, अभी हमने ये बताया कि टोटल डॉक्यूमेंट्स इतने मिले थे, फिर हमने इसको स्क्रीन करके इतना कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेज होगा कि हर पेपर को पढ़ो और देखो कि कौन से पेपर एलिजिबल हैं अभी भी. क्योंकि कुछ पेपर्स Okay. इसके अंदर कुछ पेपर्स इसके अंदर ऐसे आ जाते हैं जो आपके जो आपको रेलेवेंट नहीं है. थियोरेटिकल पेपर्स भी आ जाते हैं, दैट इज नॉट रेलेवेंट. सो फिर लेट्स से आप इसमें फिर से इसको नैरो डाउन, इसको और कम हो गया. लेट्स से इस स्टेज पे आपके पास 400 पेपर्स रह गए, राइट? Okay. तो
ठीक है। फिर उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि लेट मी शेयर वन पेपर विद यू, दैट इज द प्रिज्मा फ्रेमवर्क। एक्चुअली ये क्या आपका हो रहा है, यू आर डूइंग द दिस पोर्शन when we are doing this when we are extracting the papers for the SLR, so we are writing simultaneously the methodology, research methodology part. This all things will go, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये सब चीजें, all these things, they all will be a part of research methodology. How you conducted your this SLR paper, how you find the exact number of papers for your study, that will come through the research methodology. This all part will go into the research methodology part. Let me show you this research methodology part. Let me show you the tables. Look at this. So exclusion or inclusion criteria, can you see to this, each one of you? Just look at this. So हमने क्या बोला? ओके, पेपर्स पब्लिश्ड अदर देन इंग्लिश, हमने क्या लिया था इसमें? पेपर्स पब्लिश्ड इन इंग्लिश। आपने यहाँ पर एक टेबल आपका ये भी बनेगा, दैट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ये सब चीजें जो अभी हमने स्कोपस डेटाबेस से जब पेपर्स निकाले हैं, सारे स्कोपस डेटाबेस से जो भी हमने पेपर्स निकाले और उसके अंदर जो भी एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरियाज जो भी चीजें हैं वो मेंशन की थी अभी, वो सब आपको राइटिंग में देनी पड़ेगी यहाँ पर। अब लुक एट दिस इंक्लूजन क्राइटेरिया, आर्टिकल्स रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल साइंस वर इंक्लूडेड। अब यहाँ पर आप देखिए, लुक एट दिस, हमने क्या यहाँ पे इंक्लूड किया था? लिमिटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। So this is one thing you will be giving here, inclusion criteria. So this is one of your inclusion criteria. Journal articles with the keywords. ये दूसरा पेपर है तो इसमें keywords फर्क है, तो यहाँ पर आपने जो keywords लिए थे वो लिख सकते हो। Papers published in English, right? All papers are Scopus indexed. ये आपके क्या है? इंक्लूजन क्राइटेरिया। और ये आप कहाँ दे रहे हो? रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। जब आप, लेट मी रिपीट दिस अगेन, जब हम स्कोपस डेटाबेस से पेपर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं एक्सक्लूजन इंक्लूजन की, वो सब आपको इस पेपर में देनी है। हमने क्या एक्सक्लूड किया था? बुक्स, डिसर्टेशन, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, बुक रिव्यू। तो आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में क्या दे रहे हो? ये। फिर आप ये भी दे सकते हो कि आपने कौन से पेपर्स को एक्सक्लूड किया। पेपर्स फ्रॉम इम्यूनोलॉजी, मेडिसिन, जेनेटिक्स, तो ये आपने एक्सक्लूड किए। पेपर्स पब्लिश्ड अदर देन इंग्लिश, आर्टिकल्स इन प्रेस, आर्टिकल विदाउट एक्सट्रैक्ट, ये आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया। सबको समझ में आ रही है ये चीजें? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। Ma'am, I have one query. Can I ask? Yes, yes. Ma'am, to get more relevant papers, can we use and boolean, like instead of or? For example, if my research is strategic human resource management practices used by organizations during COVID-19, so can I use two keywords together? नहीं, let me tell you one thing. आप कोविड का अगर सिर्फ करोगे ना तो आपको हो सकता है पेपर्स ना मिले। Yes. Use a general and a general topic, not like this. Like strategic human resource management practices. That you can do. So But can I can't use two keywords together, like SHRM and COVID-19. कर सकते हो बिल्कुल। नहीं, कोविड मत करो। I will Or not suggest- any other keyword. हाँ, Can you use and? Yes, you can use the and keyword यहाँ पर, and कर सकते हो। Okay. Sustainable finance or let's say and sustainability. Okay. या फिर सस्टेनेबल फाइनेंस एंड अगर मैं कहूँ ग्रीन HR है, ग्रीन फाइनेंस वाला, तो इसके ऊपर भी पेपर्स आ जाएंगे। 44 डॉक्यूमेंट्स Okay. एंड 2 टॉपिक्स हो गए ना ये, Yes, yes. ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एंड वर्ड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ और लिया है, तो यहाँ पे एंड वर्ड भी यूज कर सकते हो। और का मतलब होता है या तो ये वर्ड हो या कीवर्ड ये हो या ये हो, और एंड का मतलब है ये तो है ही है बट ये भी हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, यहाँ कोई लिमिट है कि हमें SLR के लिए इतना मिनिमम नंबर ऑफ पेपर रिव्यू करना है? मिनिमम नंबर 40। मेरा एक पेपर है उसमें आई थिंक आई हैव डन इट फॉर 29 और 32।
कुछ ऐसे किया मैंने, वो कोविड के टाइम का पेपर था। ओके। हाँ, और एक पेपर में मैंने 44 का भी किया है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 44 का भी किया है। तो मिनिमम 40 44 इस तरह से लो तो दैट इज ओके, क्योंकि अगर आपको पेपर नहीं मिल रहे तो सिर्फ, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। मैम इफ अच्छा, वी आर रीडिंग अ पेपर, हम्म, हमको क्या हमको ऐसे ही पता चल जाता है कि ये SLR पेपर है? हाँ, लिखा होगा उस पेपर पे। आप, मैं आपको भी बताती हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। एनालिसिस पार्ट जब करेंगे ना हम, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जस्ट वेट, ओके। वो सारा मैं अभी बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको समझ में आ रहा है ना जहां तक बताया मैंने ये चीजें? इज इट क्लियर ना? यस। ओके, तो ओके, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगी। लेट मी शेयर दिस विद यू। ये ग्रीन फाइनेंस लिखा था, ग्रीन फाइनेंस को हटा देते हैं। तो हमारा आया था, ओहो, हेलो मैम। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। हाँ मैम, एक क्वेश्चन पूछना था हाँ कि जी ये तो हम लोग प्रोसेस आप बता रहे हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एसएलआर? एसएलआर सर, हम लोग क्यों मैं करते सर एसएलआर होता है कि जैसे एसएलआर करने का पर्पस ये होता है कि जो प्रीवियसली पेपर्स है उनमें कौन कौन सी थियरीज, ये बेसिकली ना, ये बेसिकली फ्यूचर रिसर्चर्स को, या फिर जैसे आप पीएचडी करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप जब पीएचडी करोगे ना, तो आपको ये फैक्टर्स फाइंड आउट करने में और मॉडल बनाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। दैट इज अ रियल। और इवन जैसे अब सस्टेनेबल फाइनेंस है, ठीक है, Okay. तो सस्टेनेबल फाइनेंस जैसे ये एक मेरा पेपर है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, दिस इज अ पेपर ऑन इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो मैंने इसमें ना मॉडल बनाया, एडीओ मॉडल यूज किया है डेटा एनालिसिस पार्ट में। तो मैंने प्रीवियसली जो फैक्टर्स हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेट्स से फाइनेंशियल, सोशल और अदर फैक्टर्स, क्या डिसीजन है और उसका क्या आउटकम्स था, ये एक मॉडल तैयार किया है। दिस इज, एंड इस मॉडल को तैयार करके आप अपना थीसिस लिख सकते हो। जो रिसर्चर्स हैं, लेट्स से इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग फील्ड में जो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फैक्टर्स, उनके लिए जो मॉडल बना रहे हो आप, वो बहुत हेल्पफुल होता है। इवन आपके खुद के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको नॉर्मली, जैसे 4 लोग सर ने अभी बताया कि लाइक 4 पीपल दे हैव कंप्लीटेड देयर पीएचडी अंडर मी, राइट। सो सबसे पहला पेपर मैं जो उनको कराती हूँ वो एसएलआर कराती हूँ, क्योंकि एसएलआर से आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं और इसके बेसिस पे आप एक मॉडल तैयार कर पाते हो बहुत अच्छा, क्योंकि आप रीड कर रहे हो यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स इस टॉपिक से। ओके। Have you got it? बेसिकली मैडम रिसर्च गैप मिल जाता है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ Research gap. फैक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ टॉपिक। बिल्कुल ओके बिल्कुल ओके बिल्कुल, ओके। राइट। सो ये आपकी हेल्प होती है। सो ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू वाज कि आपने जैसे जैसे, हाँ, आई वाज शोइंग यू वन मोर थिंग। स्कोपस डेटाबेस पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये देयर इज अ वर्ड यहाँ पर, एडवांस क्वेरी, इसको क्लिक करिए। तो जो हमने सारा कुछ अभी मैंने आपको बताया ना, ये इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसको उठा के रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये लिख सकते हो आप अपना। ये मैं, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ दिस एंड देन शो यू। ये क्या है अभी हमारा, ये देखो कि अभी हमने क्या कहा था, हमने कीवर्ड्स कौन से यूज किए थे, सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स। पब्लिकेशन ये कहाँ से लिया था, 12 to 25, 25 का भी आ गया होगा पेपर। सब्जेक्ट एरिया था हमारा इकोनॉमिक्स, और जो भी था लिमिट तो हमने क्या किया, आर्टिकल, एंड लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश। तो ये भी आप उठा के जो वहां से इसके अंदर डाल सकते हो अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट में। इज इट क्लियर टू ऑल? एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया आपको देना है ना, और इंक्लूजन क्राइटेरिया, और जो आपका सर्च कीवर्ड था, लुक एट दिस, ये देख रहे हो, कीवर्ड सर्च, ये एग्जैक्टली आप यहाँ पर लाके लिख सकते हो, ठीक है। और टोटल नंबर कितने आए थे उस टाइम आर्टिकल्स, फर्स्ट टाइम आर्टिकल्स जितने आए थे वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। एक होता है इसके अंदर प्रिज्मा मॉडल भी बनाते हैं ये,
मैं आपको ये लिखवा रही थी, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग अ रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट में मैंने आपको क्या कुछ बताया, ये एक तो जो उठा के लिखना है स्कोपस डेटाबेस से, फिर लिखना है आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट में एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन क्राइटेरिया, ये लिखना है आपको उसमें, है ना। और एक आपका बनता है यहाँ पर प्रिज्मा मॉडल, ये सारा ये कैपिटल में आएगा साथ, ठीक है। तो लुक एट दिस, दिस इज अ प्रिज्मा फ्रेमवर्क। इसके अंदर लिखा है रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड यूजिंग स्कोपस डेटाबेस। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं इसमें, 300। ये कोई और सैंपल है, तो यहाँ पर जितना आपके आए वो लिख सकते हो आप। उसके बाद सेकंड स्टेज पे तो आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेज पे हमारे कितने आए थे, 6170। फिर उसके बाद जो लिमिट लगाई तो उसके बाद कितने हैं, 559। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, लेट्स से यहाँ पर हमारे 6170 आर्टिकल्स हैं, उसके बाद हमारे कितने हैं, 559, ठीक है। रिकॉर्ड्स एक्सक्लूडेड, इसको माइनस करके यहाँ पर लिख दो, ठीक है। उसके बाद फॉर इन प्रेस एंड डिसिप्लिन, लेट्स से यहाँ पर आगे हमारे 400 एलिजिबिलिटी। मतलब फिर आपने क्या किया इस स्टेप के बाद, हाँ जी, इस स्टेप के बाद हमने कहाँ तक किया था, हमने यहाँ किया था कि हमारे 559 डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक पेपर को पढ़ना है। तो एक एक पेपर में जो आपको लगता है एलिजिबल नहीं है उसको पेपर्स को निकाल देना है। तो फिर नेक्स्ट आपका क्या आएगा यहाँ पर, एलिजिबिलिटी। सो लेट्स से 400 एलिजिबल हुए, बाकी हमने रिमूव कर दिए। कितने हमने रिमूव कर दिए यहाँ पर, 159। सो दीज आर्टिकल्स हैज बीन रिमूव्ड। नेक्स्ट आप इसमें एक चीज और भी कर सकते हो, यहाँ पे डुप्लीकेट्स का मतलब था, यहाँ पे वेब ऑफ साइंस और स्कोपस से लिया था, तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड स्क्रीन फॉर डुप्लीकेट्स लिखा था। बट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक चीज और भी लगा सकते हो। लेट मी शो यू दिस, दिस इज माय अनदर पेपर, ये SLR पे है, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में। तो इसमें क्या किया है, जो मेरी स्कॉलर थी उसने क्या किया, सिर्फ उन जर्नल्स को लिया, उन पेपर्स को लिया जो स्कोपस में तो सारे हैं ऑब्वियसली, ABDC A, B, A*, B, C कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो उसने ऐसे जर्नल्स को लिया जो ABDC और SCI और Q1 वगैरह, ये भी लिखा नहीं है बट यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो आप फिर लास्ट में प्रिज्मा मॉडल में इंक्लूडेड, फाइनली आपने कितना इंक्लूड किया नंबर, वो आप लेट्स से यहाँ पे मैंने 300 इंक्लूड किया। ये सबको समझ में आ रही है चीजें, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैम ये रिमूव और ये जो एक्सक्लूजन वर्ड है, जो दोनों में कैटेगरीज करते हैं उसमें क्या ऐसे कैन डिफरेंस यू बी लिटिल लाउडर सर, आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। मैम जैसे कि एक है टोटल रिमूव, कौन से रिमूव कर रहा है उसमें कौन सी कैटेगरीज के पेपर आएंगे, और सेकंड एक स्टार्टिंग में प्रिज्मा में आता है एक्सक्लूजन करना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इसमें किस कैटेगरी के पेपर होंगे मैम, मतलब कैसे बाइफरकेट करेंगे डिफरेंस इन दोनों में। किसमें नहीं समझ पाई, कौन से वाले में कह रहे हो आप? स्क्रीनिंग मैम, स्क्रीनिंग एलिजिबिलिटी, एक ही स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में लिखता है। स्क्रीनिंग में आपने ये जो यहाँ से निकाले आप इसको डाल सकते हो, ये स्कोपस डेटाबेस से आपको ये जो साइड पे आपने जो स्क्रीनिंग करी है इनको डाल सकते हो आप, ये सारी जो चीजें आपने डाली। और यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन मेंशन इट हियर, यहाँ पर यू कैन मेंशन हियर, है ना, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर सकते हो कि इंग्लिश आर्टिकल्स। नहीं वो मैम नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ एक्सक्लूड कैसे करेंगे, उसमें क्या एलिजिबिलिटी होगी हमारी, क्योंकि मैं इसमें कई दिनों से ट्राई कर रहा था तो इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था। एक पार्ट है जब स्क्रीनिंग करते हैं एक्सक्लूड में किस किस यहाँ कैटेगरी। भी कह रहे हो आप? हाँ यस मैम, जस्ट मैम उसमें है प्रिज्मा का जो चार्ट बना हुआ है ओके मैम। एक है स्क्रीनिंग में है एक्सक्लूड करना, और फिर इसके बाद ये एलिजिबिलिटी में रिकॉर्डिंग में एक्सक्लूड करते हैं। इसमें मैम कैसे हम देखिए टोटल आर्टिकल रिमूव, इन दोनों में क्या एलिजिबिलिटी हमारी होगी, क्या पेपर में हम क्या चीज देखेंगे जिनको हम कहेंगे इसमें एक्सक्लूड में जा रहे हैं और फिर इसका रिमूव में आ रहा है, जैसे आपने भी। ये वाला कह रहे हो? यस मैम। ये तो
आर्टिकल्स इन प्रेस और आर्टिकल्स, इसको एक मिनट, आप इसको इधर ऐसे मत देखिए, इसमें ना आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हो। आप इसमें टोटल आर्टिकल्स रिमूव भी कर सकते हो। और एक मिनट, एक और प्रिज्मा फ्रेमवर्क था, मैं अगर देख पाऊं उसे, एक मिनट तो जस्ट, प्रिज्मा ना आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। मैं एक और प्रिज्मा अगर इसमें दिख गया मुझे, लेट मी शो यू। आप ना इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट लिख सकते हो, ये जो आपने चीजें करी है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am, एक मैंने भी ओके, ये रहा, एक मिनट, लुक एट दिस, ये दिस इज अ बेटर वन। Look, paper titles and abstract was screened thoroughly and only those articles that are related in the field of with the following keywords, right? आप ऐसे लिख सकते हो, और total records excluded, बस आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल। इसमें इतना, यहाँ पर आप दिखा सकते हो आइडेंटिफिकेशन कैसे किया, records identified in the research in the field of this पेपर, और टोटल पेपर्स दिखा दो यहाँ पर। फिर पेपर्स टाइटल्स वर स्क्रीन थॉरोली एंड ओनली दोज आर्टिकल्स वर सिलेक्टेड दैट आर रिलेटेड इन द फील्ड ऑफ इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट विद द फॉलोइंग कीवर्ड्स। स्क्रीनिंग में आपने ये दिखाया, टोटल रिकॉर्ड्स एक्सक्लूडेड, आप सिंपल ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो। फिर आप दिखा सकते हो इसमें आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम एबीडीसी एंड स्कोपस जर्नल वर सिलेक्टेड, तो इतने रह गए, और ये कितने माइनस हो गए इसमें से, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, ये टोटल सॉरी यहाँ से, यहाँ टोटल है, इसको इसमें से माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। सॉरी मैम, फिर से रिपीट कर दीजिए ये वाला पार्ट। ये यहाँ पे जितना टोटल था और ये जो टोटल है ना, इन दोनों को माइनस किया तो ये एक्सक्लूडेड आ गया आपके। ओके समझ गए आप ये चीज? मैम। नेक्स्ट है आर्टिकल्स वर स्क्रीन फॉर क्वालिटी जर्नल विद रेलेवेंट कंटेंट। तो अब टोटल आर्टिकल्स आपके पास कितने आ गए? 154। 154 में से 254 माइनस के 100 एक्सक्लूड हो। सिंपल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर सर। यस मैम। राइट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर दिस थिंग। आपको मतलब अपने हिसाब से भी इसको जो बेस्ट लगता है ना आपको, वो बना सकते हो, इसमें प्रेजेंट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो मैम एक चीज और पूछना था। हाँ जी सर, आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा सा आप लाउड बोलोगे? मैम जैसे एक और मैंने प्रिज्मा का देखा था, एक्चुअली मैं आजकल सोच रहा था लिखने के लिए पेपर, तो इसमें मैम इन लोगों ने कुछ चीजें और ऐड की थी, जैसे रॉन्ग पॉपुलेशन, रॉन्ग सर इंटरवेंशन। वो आप कुछ भी सर देखो, आप कैसे? इसको मैं एक चीज बताती हूँ, वो आप इसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आजकल इसका मॉडिफाइड वर्जन भी होगा, तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि ये मेरा जो ये प्रिज्मा मॉडल मैंने आपको पहले दिखाया, ये मेरे किसी और पेपर का, ठीक है मैम। ठीक है? तो ये जब जैसे जैसे मैंने लिखना शुरू किया तो इतना नहीं पता था, तो ये बना, राइट? फिर जब मुझे बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि मैंने हैव रिटन ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 to 5 पेपर्स ऑन एसएलआर नाउ, तो अब मुझे और ज्यादा पता लगने लग गया। सो आई हैव इंक्लूडेड ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो आप इसके अंदर और भी कर सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा, वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना? ओके सो एक बार हम टॉपिक पे कर लें, है ना सर? सॉरी। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मतलब अभी अगर ये मतलब ओवर द टाइम आप इसको किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच। आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू शो द एडिटर ऑफ द जर्नल कि लाइक बिल्कुल उसको समझ में आना चाहिए। दैट इज व्हाट आवर पर्पस इज। ओके तो मैम एक, हाँ फाइनली एक बारी थोड़ा सा, जो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, ऐसा मतलब कोई ये नहीं कि जो लोग पहले कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग करें, हम दोनों में से अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पे मैम कर रहा था अभी, तो मैं जैसे ट्राई कर रहा हूँ अभी पेपर एसएलआर करने की, जैसे कई पेपरों मैंने देखा उन्होंने बायसनेस बेस पे किया था, बायसनेस बेस पे भी करने के बाद उन्होंने कई थ्योरीज को भी एक्सक्लूड किया। तो एज सच मैं पूछ रहा था कि ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि मतलब फिक्स क्राइटेरिया हो कि हम इससे रिमूव कर रहे हैं या इससे हम वो कर रहे हैं? नहीं सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो लेट मी
Okay, तो let me get back to this. Okay, so this is our research methodology part. I hope it is clear to all. The research methodology part is clear to all. जब इसका ये मतलब हो गया, जो हम स्कोपस डेटाबेस से पेपर्स निकालते हैं और एक्सेल फाइल निकालते हैं, CSV फाइल, तो उसमें जो जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, दैट ऑल विल बिकम अ पार्ट ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी. I hope it is clear, है ना? So please raise your hands if it is clear to all. So let's move to the introduction part now. Once again, मैं आपको ओके तो अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर हम बात करें तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे लिखते हैं, लेट मी टेल यू. फॉर दिस नाउ लेट्स टॉक विथ मी. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट में लेट्स से वी आर राइटिंग ऑन इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग. ठीक है, तो यू नो एक तो फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स you can write यहाँ पर, or you can take the help of Google as well, right? So let me show you one thing. मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, एक मिनट. ओके तो एक बार ये एक दो लाइंस पढ़ेंगे सभी. फर्स्ट 2 lines is okay. तो आप देख सकते हैं, आई थिंक एवरीबडी हैज रेड इट. तो आप ये देख सकते हैं कि हमने जब टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो इसको उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में भी लिखा है कि लुक एट दिस. इन 2019 the estimated size of impact investment market was this. In 2001 it has increased to this. तो ये सारा मटेरियल एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर हमने कहाँ से लिए थे? गूगल से. तो जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. व्हेन वी आर राइटिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट, सो व्हाट ऑल हैज टू बी रिटन व्हेन यू आर राइटिंग इन SLR. तो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है, प्रीवियस पेपर्स में से भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, गूगल में से भी कुछ लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स को दिखा सकते हैं. लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा सकते हैं आप इसमें, राइट? और आपने क्या दिखाना, एक मैंने ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज एक निकाली है. लेट मी शो यू दिस. Look at this. This is, I have found this a very good thing. How your paper is different from others. So जब आप let me यहाँ पर लिखती हूँ, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में? एक तो प्रीवियस पेपर से थोड़ा डेटा कलेक्ट करके लिख सकते हैं, गूगल से लिख सकते हैं, और एक हम कहाँ से लिख सकते हैं, हाउ ये लिखना है, हाउ योर पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. लेट्स से किसी ने ऑलरेडी SLR किया हुआ इसी टॉपिक पे. ठीक है, तो ये एक फाइल मैंने निकाली है, ये कंपेयर कर सकते हैं. मेटा एनालिसिस पे है ये जो मैंने किया था. आप इसमें दिखा सकते हो किसी ने इसी टॉपिक पे अगर काम किया है तो उसने किस ऑथर ने काम किया, किस ईयर में काम किया है, उसका टाइम पीरियड क्या था, उसने सैंपल कितने पेपर्स को सैंपल लिया, उसने क्या मेथोडोलॉजी यूज किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्कोप ऑफ रिव्यू और फोकस. जितने भी कईयों ने बिब्लियोमेट्रिक किया होता है, राइट? कईयों ने SLR किया होता है, बट दैट SLR इज नॉट एग्जैक्टली जो आप करने जा रहे हो, है ना? तो आप हाउ योर पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो ये एक टेबल आप बना सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग अ SLR पेपर. ये टेबल समझ में आए सभी को? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टेबल. ये भी मैं आई वाज लाइक वर्किंग ऑन सम पेपर, सो आई गॉट टू नो अबाउट दिस पेपर, सो आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. सो अब आप लिखोगे अवर स्टडी. यहाँ पे देख रहे हो अवर स्टडी.
पहले तो सबके बारे में यू हैव रिटन कि सबने क्या क्या काम किया और आपकी स्टडी में आप क्या करने लगे हो और हाउ इट इज डिफरेंट। तो मतलब कुछ डिफरेंट है तभी आप कर रहे हो ना, आपका टाइम टेबल टाइम पीरियड ही फर्क है, आपके स्टडी में कितने आपने सैंपल लिए 101, ये मेटा एनालिसिस का पेपर था। तो यहाँ पर आपने अपने आप को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द अदर पेपर्स। सो दिस पार्ट विल गो इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट, how your paper is different from the previous paper. So this will become a part of your introduction as well. I hope this is clear. This is very very important. This time ना अभी एक पेपर पे हम काम कर रहे थे, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, ये गया हुआ है एडिटर के पास। तो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा, उसने 2-3 पेपर्स हमें भेजे और बोला कि this paper somebody has written on the impact investing. So how your paper is different from them? So we told them like हमने एक टेबल बनाया and then we showed them. So this can be a question. So you can make an analysis like this, right? So this is one thing, right? And next important thing is the objective of your SLR. This also becomes a part of the introduction. So let me show you this. Let me open this one file. Everybody please read this research questions. Let me increase the font size. Just read this 3 objectives or the research questions. What is the first one? What are the antecedent decisions and outcomes of CE on social media? Ye some paper I am showing you. This is from a journal of business research. What are the theories, context, and methods used to study the CE on social media? What are the pathways for advancing knowledge, improving? So this is normally the objective that comes into the introduction. So this is how you write the introduction part if you are doing the SLR. Let me show you one more thing onto this. Tables. It is very very important if you make more and more tables in your paper. इसमें नहीं है दूसरा. Let me open some. Let me open some other paper. मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चलता है, but okay. So this is a paper. Let me show you. Okay. This one, this one. Okay, yeah. This is in the introduction. What the authors they have done, what I'm trying to tell you is, जितनी आप डायग्राम्स वगैरह बनाओगे और अपने पेपर को जितना डायग्राम्स में के थ्रू एक्सप्रेस करोगे, तो दैट गिव्स एडिटर की अटेंशन उतनी ही जाती है. जैसे अब देखो इसने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट लिखा डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चंस. तो जो इसके क्वेश्चंस थे वो इसने यहाँ भी डाल दिए. वहां तो लिखे ही थे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं इंट्रोडक्शन के बाद. यहाँ इंट्रोडक्शन में तो लिखे ही है यहाँ पर. और किसी और ने क्या किया, दिस इज द टेबल यहाँ जरूर वाले में. सो दिस इज द टेबल ऑल्सो ही हैज मेड, सॉरी फिगर. फिर उसके बाद एस्टेब्लिशिंग द स्कोप एंड बाउंड्रीज, कीवर्ड्स लिख दिए, टाइम पीरियड लिख दिया, बाउंड्रीज, स्कोप ऑफ द स्टडी. देख रहे हो आप ये कैसे किया उसने. प्रिज्मा मॉडल की जगह this he has made this. Can you see? So it is different from the Prisma model. तो इसने यहाँ पर ये बता दिया कि इसने how he proceed to get the papers from the Scopus database or some database, right? तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हो. And last is analysis and synthesis, right? So he has made this diagram. So try to have more and more diagrams in your paper to get the attention. Like मैं आपको एक और चीज अगर खुलता है तो लेट मी चेक, आई डोंट नो.
नहीं, इसमें नहीं है। जैसे मैंने मेरा एक पेपर था उसमें, look at this, this is one diagram that I have made. Database, articles, field कौन सी में सर्च किया है, string क्या यूज की थी, search string, time क्या था. This is one table that I have made. Exclusion, inclusion criteria, Prisma model. So the more you make the tables and figures, so it will give a very good impression towards the to the editor. Right? Is it clear? So this is about how you write the introduction part. So research methodology we have already done. I told you this. Research methodology में क्या होगा आपका, exclusion inclusion criteria. Keyword search, keywords, और क्या था इसमें, Prisma framework. So this is your research methodology part, right? So let's move to the data analysis part now. Data analysis part, इन सबका क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? What we are trying to do is, so we are trying to review the previously written papers. Now data analysis में आप क्या लिख सकते हो, year of publication. Year of publication का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, let's say ये हमारा डेटाबेस है ना, स्कोपस का डेटाबेस, ये एक मास्टर फाइल है जो हमेशा आपके साथ चलेगी. This is the most important file that you have to, that is the most important file. So let's say आपका इसके अंदर data analysis, what we are doing right now is the data analysis. Let's say first हमने इसमें year of publication, तो हमने year of publication का क्या मतलब है कि जो previously papers थे जो लिखे हैं लोगों ने, उसमें कौन सी years में कितने कितने papers लिखे हैं. तो let me put it here. यहाँ पर आ गया, मैंने इसको sort कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो आप देख सकते हो 2024-23 में कितने कितने पेपर्स हैं. तो आपका एक डायग्राम ऐसे बन जाएगा. लेट मी शो यू दैट. इसके अंदर लेट मी सी है कि नहीं, नहीं है तो मैं एक मिनट दूसरा पेपर खोल के आपको दिखाती हूँ. नहीं है इसमें, एक मिनट, लेट मी शो यू अनदर पेपर ऑफ माइन. सब कुछ समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर. सबको समझ में आ रही है चीजें? नाइस. This is my recent paper that I worked on, so I remember the things. Let me show you this. Okay, now year of publication. Just look at this. Can you see? So what we have written is year of publication. It means what? It means जो ये previous paper है, जो मैंने ये database निकाला है स्कोपस से, ठीक है, उसमें कितने साल, 2011 में कितने लोगों ने काम किया है, 13 में, 14, 15, 16 कितनों में काम किया है. तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है, और इस डायग्राम के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया. तो फर्स्ट एनालिसिस किसके बेसिस पे किया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन. ईयर ऑफ पब्लिकेशन तो हमने बताया कि कौन सी ईयर में सबसे ज्यादा पब्लिकेशंस है, 63 इन द ईयर 2023, फिर 2022 में, फिर किस ईयर में, राइट. So this is what I have written. Next important aspect in this is journal of publication. Journal of publication का मतलब किस जर्नल में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स लिखे गए इस टॉपिक से रिलेटेड, जर्नल. तो ये कहाँ से मिलेगा, सोर्स टाइटल. आप इसको यहाँ क्लिक करोगे, नई शीट पे ले जाओगे, ये आ गया आपके पास, ठीक है. आप यहाँ पर इसको भी सॉर्ट फिल्टर कर सकते हो, A to Z, ये आ गया. तो अब आप कैसे करोगे इसको सॉर्ट, कैसे लिखोगे? Let me write this one for you. ये जर्नल का नाम है, रिपीट हो रहा है जर्नल नहीं, तो यहाँ पे नंबर लिखोगे 1.
सेकंड, ये जर्नल है, ये रिपीट हो रहा है नहीं। सो व्हाट विल यू डू इज, यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 1। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कितने जर्नल्स हैं? 1 2 3 4, 4। सिमिलरली फॉर द whole of this. Is it clear? So, is it clear now or to all, I feel? So basically, क्लियर। हाँ जी, okay. So basically, ये जो हमारी फाइल आई है स्कोपस डेटाबेस से, ये हमारी मास्टर फाइल है, ठीक है। हम इसके बेसिस पे वी आर डूइंग द एनालिसिस, राइट? सो लेट मी टेक यू टू द जर्नल ऑफ पब्लिकेशन। फिर यहाँ पे मैंने लुक एट दिस, ये जर्नल है, मैंने इसकी इंडेक्सिंग भी दी है कि मैंने सिर्फ उसी जर्नल्स में से पेपर्स उठाए हैं जो एबीसी कैटेगरी में से लाई करते हैं। लुक एट दिस, और कितने आर्टिकल्स हैं उस जर्नल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका हो सकता है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टडी, तो ये आपको पता लगेगा यहाँ से। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, वो जो आपने अभी एबीटीसी जर्नल वाली रैंकिंग सिखाया ना, वो भी आपने एक्सेल से लिए हैं, सीएसवी फाइल से? नहीं वो नहीं, ना, वो तो आपको यहाँ पे एक ना साइमेगो वेबसाइट होती है। अगर आपको, अच्छा स्कोपस तो है ही है, तो एबीडीसी यहाँ पे टाइप करो, जर्नल लिस्ट एबीडीसी टाइप करो यहाँ पे। तो एबीडीसी जर्नल क्वालिटी लिस्ट, फर्स्ट जो लिंक आया उस पर क्लिक करो, ये आ गया आपके पास। यहाँ फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पे एबीडीसी जर्नल क्वालिटी लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करो, तो ये आपको एक फाइल डाउनलोड हो गई है। लुक एट दिस, हो रही है डाउनलोड, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ से पता लग जाए, यहाँ पे जर्नल्स के नेम है और उसके आगे लिस्टिंग दी हुई है, ये कौन से एबीडीसी कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है। मैं अभी Yes. खोल के दिखा देती हूँ जैसी खुलेगी। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर भी लेट्स से मैंने ये जर्नल का नाम टाइप किया यहाँ पे और इस पे एंटर मारा, तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे ये आ जाएगा कि ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। देख रहे हो आप ये चीज? इज इट क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके, तो ये मैंने, हाँ ये फाइल खुल गई थी। ओके लेट मी शो यू, एक मैं खुली गई थी तो मैं दिखा देती हूँ। एक मिनट, सर लिटिल कंफ्यूजन, यहाँ खुल रही है। हाँ लुक एट दिस, ये यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे जर्नल्स है, 2000 के से भी ज्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नेम्स है जर्नल्स के आगे, इधर ये जर्नल के टाइटल है, ये पब्लिशर है, ये इसकी रेटिंग है, तो यहाँ से देख सकते हो आप एबीडीसी लिस्टेड, ठीक है। ओके, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, सोर्स टाइटल ये हो गया हमारा। उसके बाद पब्लिकेशन हाउस भी देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ऑथर्स एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर्स, ये रहा पब्लिशर यहाँ पर, दिस इज द पब्लिशर। तो आप इसको नई फाइल में ले जाओ, इसको भी, है ना, और उसको भी इसी तरह से जो अभी पीछे किया है, एनरोल्ड में कितने हैं, एल्सवेयर में कितने हैं, तो यहाँ पे काउंटिंग लिख सकते हो और उसको बना सकते हो टेबल को, ठीक है। एक ये भी होता है कंट्री ऑफ द स्टडी। अच्छा मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, लेट मी गो बैक टू द स्कोपस डेटाबेस, ये हमने अभी यहाँ से निकाला था ना, यहाँ पर ना एनालाइज रिजल्ट, कैन यू सी टू दिस, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहे एनालाइज रिजल्ट्स, है ना, इसके ऊपर क्लिक कीजिए आप। ये खुल रहा है, ओके। यहाँ पर
ये जो चार्ट्स हमने वहां से बनाया ना, तो आप ये यहाँ से भी बना सकते हो. लुक एट दिस. ये बता रहा है आपको कि कौन से ईयर्स में कौन कौन से हैं. आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, एक्सपोर्ट. ये देख रहे हो ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट. ये चार्ट क्या है, ईयर वाइज, जो हमने यहाँ पर बनाया था अभी, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ईयर वाइज. फर्स्ट चार्ट ईयर वाइज दिखाया था ना, ईयर वाइज जैसे ही खुद बनाया था हमने. तो यहाँ से जो स्कोपस डेटाबेस है उसपे से भी आप ये, आपको कुछ रिजल्ट्स बने बनाए मिल सकते हैं. और आपको यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए और ये अपने आप से निकल आएंगे. इसमें और भी है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, एक मिनट, डॉक्यूमेंट बाय कंट्री, एक ये चार्ट भी है कंट्री वाइज. लुक एट दिस. तो यहाँ पर भी एक्सपोर्ट का जो बटन है, यू कैन प्रेस दिस एंड ये चार्ट आपको मिल जाएगा. ठीक है. Can you please show this again? How you did it? यस. Analyze search results. एनालाइज रिजल्ट्स, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है हमें. क्लिक ऑन टू दिस. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. ये देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रही हैं. ये अपने आप से दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स बाय ईयर, ये निकाल सकते हो इसका. यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक्सपोर्ट, इस पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप से एक्सेल फाइल में निकल जाएगा. करके देखना, इट विल बी डन. कंट्री पे क्लिक करो तो ये अपने आप से कंट्री का डायग्राम बन गया. एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये पूछ रहा है कौन सी फाइल में चाहिए आपको. एक्सपोर्ट द डेटा टू ए CSV फाइल. आई विल से CSV फाइल एंड एक्सपोर्ट. तो ये डेटा आपके पास एक्सेल फाइल में आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे भी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये आप खुद भी बना सकते हो यहाँ पे जाके ऐसे, राइट, ईयर वाइज, कंट्री वाइज, और यहाँ से भी बने बनाए ले सकते हो. आई होप इट इज क्लियर. ये आप करोगे तो हो जाएगा. इट इज नॉट वेरी टफ. ओके, तो लेट्स गेट बैक टू. ओके, तो ये चीजें, ये है इंपॉर्टेंट चीजें, राइट. बट नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ADO मॉडल और TCCM मॉडल. ये दिस इज द मोस्ट important thing when you are doing the SLR. ये फायदा आप क्यों कर रहे हो SLR, ये मॉडल बनाने के लिए, या तो आप TCCM फ्रेमवर्क, TCM फ्रेमवर्क या ADO मॉडल, और ये इकट्ठा भी इसको यूज कर सकते हो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर डूइंग दिस SLR. सो ये जो आप चीज निकालते हो, दिस इज व्हाट गिव्स यू, कि मतलब आपने कोई काम किया है, तो काम अगर आपने किया है, अगर आप SLR कर रहे हो और आपने ये चीज नहीं करी, तो इट मीन्स यू हैव नॉट डन एनीथिंग. ADO मॉडल, तो आई विल से दैट इट इज अ मस्ट फॉर एवरी SLR. यहाँ से आप फैक्टर्स को फाइंड आउट कर रहे हो, राइट. दिस पेपर इज वन ऑफ माय पेपर जिसमें हमने ये किया है एंटीसीडेंट. ADO A का मतलब होता है एंटीसीडेंट, D का मतलब होता है डिसीजन, O का मतलब होता है आउटकम. तो अगर कोई पर्सन इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका क्या मोटिव है, फाइनेंशियल मोटिव है. तो उससे क्या रिजल्ट्स होते हैं और उसका आउटकम क्या होता है. ये मॉडल तैयार किया मैंने. दिस इज द मॉडल, ADO मॉडल, एंटीसीडेंट, डिसीजंस एंड आउटकम. ये मॉडल है, इसको मैंने एक थियरी से रिलेट किया है. दिस इज व्हाट मेक्स माई पेपर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब ये जाती है, ये इन चीजों की वजह से आपका पेपर पब्लिश होता है. जो मैंने अभी तक आपको चीजें बताई वो इम्पॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस पार्ट इम्पॉर्टेंट है, बट डेटा एनालिसिस में ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जर्नल ऑफ पब्लिकेशन, ये तो हर कोई कर ही लेगा, एंड दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग. बट व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द ADO मॉडल, TCCM और TCCM मॉडल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. TCCM में क्या होता है हमारा, T का मतलब होता है, T का मैम मतलब, कैन यू रिपीट ADO मॉडल अगेन? ADO मॉडल मैं आपको लिख के बताती हूँ. A का मतलब होता है एंटीसीडेंट, डिसीजन, D का मतलब, एंड O का मतलब होता है आउटकम. तो आपको ये फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है. लेट्स से जैसे मैं
लेट्स से मेरा मैं पेपर कर रही हूँ इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, मैं SLR निकाल रही हूँ इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पे। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग इज माय टॉपिक, ठीक है। ये इसके अंदर मुझे ये निकालना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में, ठीक है। तो जो फैक्टर्स मैं निकालूंगी दैट विल बी कॉल्ड एज माय एंटीसीडेंट्स, फैक्टर्स दैट मोटिवेट्स पीपल टू इन्वेस्ट in impact investing. This is what my factors is. This is the first element or the first aspect of the EDU model. So what is the next important aspect? Decision. इस जो let's say first factor जो है वो है financial factor. क्यों लोग invest करना चाहते हैं? Because of financial reasons. ऑब्वियसली किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स चाहिए होते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट, और भी फैक्टर्स आप फाइंड आउट करोगे, ये मैं आपको सिर्फ एक फैक्टर बता रही हूँ अभी। यहाँ पर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आप देख सकते हो, ठीक है, जो प्रीवियस पेपर्स। और ये फैक्टर्स आपके कहाँ से मिलेंगे? प्लीज अंडरस्टैंड, यू विल गेट ऑल दीज फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट दैट यू हैव गॉट फ्रॉम द स्कोपस डेटाबेस। ये आपको सारे फैक्टर्स कहाँ से मिलेंगे? आपको यहाँ से मिलेंगे एब्स्ट्रैक्ट से, जो आपने ये पूरी ये मास्टर फाइल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द मास्टर फाइल। जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपने अलग लिखी है, यू रीड दिस फाइल एंड फ्रॉम हियर यू विल फाइंड आउट द फैक्टर्स। आपको जो जो मिलता जा रहा है ना वो आप लिखते रहिए। अगर आप 2 से 3 लोग काम कर रहे हैं तो आपको what I will suggest you is Google Sheets. That is the best way out. Let me show you my work that we have done it here. Let me show you here. This is my Google Sheet. It's opening up. Okay. Look at this. This is मैं आपको ना वो भी दिखाती हूँ, अगर सेकेंड हैंड फैशन पे मिली ना वो दिखाते हैं आपको। ये रहा सेकेंड हैंड फैशन। ये एक पेपर था जो हमने लिखा था, थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इसमें अगर पुरानी शीट्स भी निकली ना तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी शीट्स निकलती हैं। ये हमने बहुत मेहनत करके इस पे काम किया एंड यू नो देन वी आर एबल टू फाइंड इट दिस आउट। लेट मी शो। ये तो आई थिंक फाइनल वर्जन है। मतलब what we have done is like we were 3 females, I told you this. So what we did was like हमने मतलब अपना अपना नाम लिख के, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट लिखे, राइट। फिर उसके बाद हमने डिसीजंस लिखे जो जो भी समझ में आ रहे थे, फिर हमने आउटकम्स लिखे। हमने गूगल शीट इसलिए फ्लोट करी क्योंकि ये सब एक्सेसिबल होती है सबके लिए। सो वी वर 3 फीमेल्स। अगर मैं अपने पास काम करती तो मैं सिर्फ अपना काम कर पाती, दूसरा ना देख पाता। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए गूगल शीट पे काम किया सो दैट बिकॉज वी आर वर्किंग इन कोलैबोरेशन, तो हर कोई देख सकता है। फिर जब हमने यहाँ पे लिख लिया उसके बाद हमने डिस्कशन किया और फिर ये मॉडल को फाइनलाइज किया। किसी भी पेपर का, SLR पेपर का, दिस इज द major thing that we have to do. Let me open up one of the papers of Satish Kumar sir. Let me see it is there or not. Yeah, let me open his paper. सबको समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। Are you able to understand all of it? This is the most important things. If we are doing the SLR, इसके बिना पेपर नहीं। There is nothing without this models. It's opening up. Okay. This is a paper of Satish Kumar. Let me show you the model. इसने क्या मॉडल बनाया? Look at this. बहुत अच्छा मॉडल बनाया है इन्होंने। Look at this. ये देखो। मैं आपको शेयर कर दूंगी ये पेपर, तो आप एक बार कल देख सकते हैं इसको, है ना, अपने पास से। मैं अभी सर को शेयर कर देती हूँ, सर विल शेयर इट विद यू।
इसने क्या किया है, इसका ये जो पेपर था, इसने हर फैक्टर को उठाया, हर पेपर के, जैसे लेट्स से ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे पेपर्स हैं, सॉरी, उनका एब्स्ट्रैक्ट है। तो कई बार एब्स्ट्रैक्ट में से आपको चीजें नहीं समझ आती, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओपन अप ऑल द पेपर्स पीडीएफ फाइल। तो वो भी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप एक गूगल ड्राइव बना सकते हो, है ना, और गूगल ड्राइव बना सकते हो और उसके अंदर पेपर्स को नंबर करके यहाँ पर रख सकते हो। लेट्स से मेरे पास लेट्स से जैसे हम इस पेपर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें लेट्स से कितने पेपर हैं, बहुत सारे पेपर है, 560। तो हम 3 लोग हैं, तो हमने डिवाइड कर लिया 3 से इसको, और इसको नंबर दे दिया, दिस इज पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, लाइक दिस। और फिर इसको कहाँ सेव कर लिया, पीडीएफ फाइल्स को भी गूगल ड्राइव पे, ठीक है, गूगल ड्राइव में सेव कर लिया। और कई बार पेपर खोलने की जरूरत होती है, तो वी नीड टू चेक दैट आउट। तो व्हाट दिस सतीश कुमार हैज डन इज, जितने भी एंटीसीडेंट्स थे, जितने भी पेपर, जितने भी फैक्टर्स थे, लिखे इधर, बना दिया एंटीसीडेंट। इसने क्या किया, मेडिएटर्स और मॉडरेटर्स जो होता है उसको लिया इन्होंने डिसीजंस एंड उसके बेसिस पे आउटकम्स लिए। He has taken it from the previous papers. ये सेक्टर लिया है कि कौन कौन से सेक्टर में इस टॉपिक के ऊपर ये मॉडल यूज होगा, एडीओ मॉडल। Let me repeat this again. What he has done is, this is a paper by Satish Kumar. This is another way of writing the ADO framework. मैंने आपको क्या बताया, हमने क्या किया था, हमने इस तरह से काम किया था, हमने एंटीसीडेंट्स, इससे रिलेटेड जो डिसीजंस है और उसका आउटकम क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो आउटकम क्या है। अगर फाइनेंशियल मोटिव है अगर आपका, तो आउटकम्स क्या होंगे, सेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल रिटर्न्स चाहिए आपको, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये चाहिए होगा आपका आउटकम अगर आपका एंटीसीडेंट और आपका मोटिव ये है तो, है ना। इन्होंने क्या किया सर ने, व्हाट ही हैज डन इज, जितने भी फैक्टर्स थे जो आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, ये जो एब्स्ट्रैक्ट है या फिर पीडीएफ फाइल्स अगर आप लोगे, तो उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो लिख दिए। फिर इन्होंने क्या किया, मेडिएटर्स और मॉडरेटर्स जितने भी पेपर्स में लगे हुए वो सारों को बना दिया इन्होंने डिसीजंस। फिर इन्होंने बनाया, लुक एट दिस, ये कि कौन कौन से फील्ड में ये यूज हुआ, इंश्योरेंस, बोरोइंग्स, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, और इन सब के आउटकम्स क्या है, ये फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप। तो इन्होंने इस तरह से एडीओ को बनाया है। लेट मी राइट इट हियर, कैसे बनाया है। व्हाट ही हैज डन इज, एंटीसीडेंट्स में what he has written in all the factors, decisions में क्या किया इन्होंने, mediators and moderators in previous papers, और outcome में what is the outcome, like satisfactory satisfaction level increased. This way he has written outcomes of the study. तो इन्होंने जो सतीश सर है उन्होंने इस तरह से वर्क किया है, उनका मॉडल ऐसे बनाया उन्होंने, मेडिएटर्स एंड मॉडरेटर्स को रखा है डिसीजंस में। ये सबको समझ में आ रही है चीजें, कोई बात नहीं, विल टॉक, अगर आज नहीं खत्म हो पाएगा तो इसको थोड़ा सा मैं कल, आई विल टेक इट अप टुमारो एज वेल। हाँ जी मैम आई हैव अ क्वेश्चन नाउ, दिस केस आपने जो बोला कि एडीओ मॉडल में बाकी जो पुराने पब्लिशर्स हैं, they have done research and they have put the antecedents and the decisions and their own outcomes. But when you are saying that you want to compare it with our own paper and our approach and how are we different, now in the current stage we have not done any research, we are only reviewing these papers. तो उसमें क्या mention करेंगे कि how our outcome is so different than these guys? तो आप अपना पेपर पूरा जब कर लोगे तो आउटकम लिख देंगे हम उसमें। बट एसएलआर में रिसर्च भी आएगी, क्या आएगी, एसएलआर जो पेपर है हाँ। उसमें आर वी आल्सो सपोज्ड टू डू द रिसर्च वर्क? नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए।
for example, if I've taken a topic, say I've taken any topic, हाँ. now am I supposed to also do the survey and the research on the ground, talking to people and taking information, or am I only No, supposed no, to no. You will not be talking to anyone. You will be only just seeing the papers, just see the previously papers? published papers. Yes, yes. SLR means this only. It does not include the. It does not include your ये quantitative study नहीं है. उसमें आप कोई नहीं है. survey conduct, primary database पे कुछ नहीं काम करेंगे. Okay, okay, This is got it. only. ये देखिए ना सर, आप what we have done is why we have used the Scopus database. So ये जो let's say ये 764 documents, 764 जो papers हैं, उनको analysis किया है. We are trying to analyze those papers. अगर आप ये लिख रहे हो, एक मिनट देखिए, ये let's say 764 papers में मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा काम इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में किसने कौन सी ईयर में हुआ है. तो let's say 63 papers कौन सी ईयर में, 23 में. तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप जो प्रीवियस पेपर्स जो आपने निकाली है स्कोपस की, ये स्कोपस डेटाबेस से, तो आप ये देखने की कोशिश कर रही है जो 764 पेपर्स हैं, इनको कौन सी ईयर में सबसे ज्यादा इसके ऊपर टॉपिक पे रिसर्च हुई है, कौन से जर्नल में सबसे ज्यादा पब्लिश हुए, कौन से पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया, और इसका Ma'am, क्या फैक्टर्स थे. this is clearly understood. My only confusion is when you are comparing it with other authors. If you can open that chart where you have also mentioned कि आपने क्या करा and how are you different versus the others. मैं एक मिनट मैं बताती हूँ आपको. उसमें क्या confusion है, है अगर आप. हाँ मैं बताती हूँ. Let me tell you this. Let me open this file. Just give me a minute. सर क्या होता है कि जरूरी नहीं है, जैसे ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मैंने इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पे ही काम किया, तो एडिटर ने मुझे क्या लिख के भेजा कि उसने मेरे को 2-3 पेपर्स दिए. उसने मुझे बोला कि आप इन 2 पेपर्स को रेफर करो और बताओ कि आपका पेपर कैसे डिफरेंट है इन 2 पेपर से. Right. तो मैंने क्या देखा कि उन्होंने क्या किया, ये देखो कंसेप्चुअल रिव्यू. कई लोग क्या करते हैं, कंसेप्चुअल रिव्यू करते हैं, कई लोग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर देते हैं. ठीक है, उनका टाइम पीरियड फर्क होता है. तो जैसे हमारा जो मॉडल है, कई मॉडल एडीयू मॉडल नहीं बनाते, तो वो Got it. डिफरेंस को आपको मेंशन करना है यहाँ पर. इसमें आपने जैसे पुराना ऑथर लिया ये है ना, जिसने काम किया ऑलरेडी, तो उसका हो सकता है कंसेप्चुअल पेपर हो, और उसका क्या ऑब्जेक्टिव था ये लिखा. आप देखो ना यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव में ही फर्क हो जाएगा. आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव लेना ही नहीं जिसमें ऑथर ने ऑलरेडी काम किया हुआ है. आपको जो अपना एसएलआर भी करोगे वो भी डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस वर्क्स. दिस इज Okay. आल्सो यू हैव टू टेक केयर. ये यहीं पर ही सॉर्ट आउट हो जाएगा कि जब This is आप ये पेपर्स एक्चुअली क्या है, जब आप स्कोपस से डेटाबेस से पेपर्स निकाल रहे हो, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि आपको ये पेपर्स को एब्स्ट्रैक्ट को इनके रीड करना है. सारे एब्स्ट्रैक्ट को आप रीड कर रहे हो तो आप इसको पता लग जाएगा कि किसने एसएलआर किया, किसने बिब्लियोमेट्रिक, किसने कंसेप्चुअल पेपर लिखा है. यहाँ से पता लग रहा है आपको. right. तो यहाँ से जब पता लग रहा है तो आप अगर लेट्स से किसी ने एसएलआर किया है तो उसके ऑब्जेक्टिव देखोगे और आप अपने ऑब्जेक्टिव को उनसे मैच करने की आप ये देखोगे ना कि आपका ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव डन. Are you getting me at this? No, now it's clear. Now it's clear. I'm pretty clear on this now. Thanks. ये टेबल बहुत इफेक्टिव है जो आपके रिसर्च गैप को बताएगा. अगर किसी ने एसएलआर भी किया है तो हो सकता है उन्होंने ऐसा मॉडल ना बनाया हो. लेट्स से अगर इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पे किसी ने काम किया लेकिन हो सकता है ऐसा मॉडल ना बनाया हो किसी ने. सो यू विल राइट हियर कि दिस इज द मॉडल दैट यू आर गोइंग टू वर्क हियर. तो यहाँ पर ही डिफरेंस आ जाएगा ना आपका और उसका. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. मैम आपने बोला कि हम फिल्टर लगाएंगे तो उसमें सिर्फ आर्टिकल्स को लेंगे. फिर मैम हम टेबल कैसे बनाएंगे, कंपैरिजन टेबल कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ आर्टिकल ही अवेलेबल होगा. तो आर्टिकल्स में ही होता है नॉर्मली, मॉडल्स वगैरह वो बुक्स वगैरह को नहीं रेफर करते हैं, हम आर्टिकल्स को ही रेफर करते हैं इसमें. वी डू नॉट कंपेयर इट विद बुक्स एंड ऑल दैट. मैम वन मोर बहुत कुछ क्वेश्चन. लिखा होता है. ओके मैम. मैम डिसीजन में इफ देयर आर एक चीज और एक मिनट लिसन टू मी. बुक्स के अंदर ना डिफरेंट तरीके से होते हैं. मतलब बुक्स में भी हो सकता है काफी कुछ हो, बट एक तो आपको बुक्स खरीदनी पड़ेगी है ना,
और दूसरी चीज है कि जो बुक्स होते हैं उसमें जरूरी थोड़ा ना ऐसे मॉडल बनाओ, ये आपकी थिंकिंग और आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कैसा मॉडल बना रहे हो और उसके क्या फैक्टर्स ले रहे हो। जरूरी थोड़ा ना किसी ऑथर ने ये सब पढ़ा और इस तरह से कर रहा है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम वन मोर क्वेश्चन है मैम, डिसीजन में इफ देयर आर नो मॉडरेटर एंड मीडिएटर देन व्हाट विल वी शो इन डिसीजन? बेटा ये दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, आई टोल्ड यू। मैं जो लिखती हूँ दैट इज अ डिफरेंट वे, बट अगर आप और वैसे भी अगर आप मीडिएटर मॉडरेटर ले रहे हो तो अगर आप 500 पेपर्स हैं तो किसी ना किसी पेपर में मीडिएटर मॉडरेटर जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि मीडिएटर मॉडरेटर ना हो। ये सारे पेपर्स का कलेक्शन में से आप मीडिएटर मॉडरेटर बता रहे हो, एक में से नहीं बता रहे हैं ना। अगर आपके 500 पेपर्स निकले हैं तो किसी ना किसी पेपर में तो मॉडल होगा ही होगा, ये तो बट ऑब्वियस है। यस मैम। मैम बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम मीडिएटर या मॉडरेटर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो डिसीजन में क्या लिख सकते हैं? डिसीजन में मैं आपको कल दिखाऊं, मैं अपना जो पेपर बनाती हूँ आई कैन शो यू दैट एज वेल। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम जो हम एडीओ मॉडल बना रहे हैं वहाँ पे सोर्स ऑथर का देने का या फ्रॉम द पेपर्स फ्रॉम वेयर वी हैव रेफर्ड इट? पेपर्स का ही दोगे, वही जो जहां से लिया आपने वहीं से दोगे। ओके मैं आपको ना कल इस पे वी विल डोंट वरी, ओके विल डू इन डेप्थ ऑन टू दिस। कल हम इसी से स्टार्ट करेंगे, राइट? विल स्टार्ट विद दिस। मैम हाँ जी हाँ जी। मैम एसएलआर पेपर लिखने के लिए स्कूपस डेटाबेस से ही लेना है या फिर स्कूपस डेटाबेस और वेब ऑफ साइंस डेटाबेस दोनों मिलाकर के भी दोनों से भी ले सकते हैं आप। देखो इट डिपेंड्स ऑन यू, मैंने वही चीजें कही थी, बहुत आप पे डिपेंड करता है। स्कोपस वेब ऑफ साइंस को भी काफी अच्छा डेटाबेस माना जाता है, आप दोनों से भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे को स्कोपस में इजी लगता है काम करना, मुझे आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद वेब ऑफ साइंस, सो मैं उस पे कम काम करती हूँ। बट अगर आप लो तो दैट इज गुड, कोई गलत नहीं है, बट अच्छा है बल्कि अगर आप उस पे भी काम कर सको और दोनों से ले सको तो और भी अच्छा है। बट मुझे वो दैट इज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, तो आई डोंट लाइक दैट। मैं बहुत स्पष्ट बोल रही हूँ, सो आई डोंट लाइक इट एक्चुअली, आई डोंट गो। हेलो मैम। हाँ जी। मैम और एडीओ Hello, ma'am. मॉडल को थोड़ा कल मैम बेटा हेलो कल, हाँ कल हम एक्चुअली मैम कल एग्जाम्पल बेटा के कल, साथ हाँ कल मैं आपको और एक डेप्थ एडीओ मॉडल से ही विल स्टार्ट होता है, डोंट वरी। पीसीसीएम फ्रेमवर्क ठीक एंड है। एडीओ मॉडल मैं दोनों आपको बताऊँ। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल डू टुमारो। एनीथिंग एल्स बाकी कल करें? मैम लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी विश्वश्री बताएंगे। गुड इवनिंग मैम। मैम माय क्वेश्चन इज दैट कि जो एडीओ मॉडल है वी विल अप्लाई ओनली इन द फाइनेंस सेक्टर या इन अदर फील्ड ऑफ द सिस्टमैटिक लिटरेसी रिव्यू लाइक एग्रीकल्चर, इससे में भी but we have to keep these three ascendants, decision and outcome. We have to categorize, ma'am. हाँ I think. हाँ 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 Okay. yes। ये मॉडल एक्चुअली दिस मॉडल हैज बीन गिवन बाय जस्टिन पॉल, तो उन्होंने दिया। आप भी अगर कोई मॉडल डिजाइन Yeah. करना चाहते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपसे बात करते करते ये भी मुझे एक नया Okay. ख्याल आया है कि लाइक वी कैन डेवलप सम मॉडल ऑफ आवर ओन एज वेल। इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम किसी और का यूज करें, हम खुद भी बना सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन मेक। Okay. Thank you. बट एडीओ मॉडल का Thank you. मतलब ये होता है, और ये जस्टिन पॉल ही हैज मेड इट, राइट? I hope it is clear to all and you ma'am. enjoyed the session, all of you. Chalo, nice. Yes, ma'am. Very enjoyed and I gained a lot of knowledge from your